Hello students. Now first of all we will discuss the differences between the acquired and inherited traits, and after this we will discuss about the species and speciation concept. यहाँ पे बेटा इस लेक्चर में पहले हम जो है acquired और inherited traits के बीच में differences discuss करेंगे, then we will study about the species and speciation. So the differences between acquired and inherited traits I have written in the form of a table. मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बीच में डिफरेंसेस लिखे हैं. सो ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल आई हैव रिटन द कैरेक्टर्स ऑफ द एक्वायर्ड ट्रेड्स, एंड ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल आई हैव रिटन द पॉइंट्स अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड्स. तो इस साइड पे मैंने एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है और इस साइड पे मैंने इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में पॉइंट्स लिखे हैं. नाउ द फर्स्ट पॉइंट अंडर द एक्वायर्ड ट्रेड इज नॉन इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन. Acquired traits are those traits which are acquired by an organism during its lifetime. For example, ear piercing. जो females में ear piercing होती है, that is acquired trait. Tattoo on the body, that is also acquired trait. तो ये जो acquired traits होते हैं, they are not inherited into the next generation. So those traits which are not inherited to the next generation, they are called acquired traits because these are acquired by an organism during its lifetime. समझ में आ रहा है? During its life and span जो भी हम acquire करेंगे that will not be inherited to the next generation. So acquired traits are non inherited to the next generation. अगर हम बात करें inherited traits की, inherited traits are inherited as change in DNA of germ cells takes place. जो inherited traits होते हैं they are transferred, they are passed on to next generation because in these inherited traits the change in the DNA of germ cells takes place. जब हमने variations पढ़े थे तो बेटा somatic variation, germinal variation मैंने आपको बताया था. germinal variations जो होते हैं they are transferred to the next generation क्योंकि उसमें जो DNA में change हो रहा है वो होता है germ cells में which are transferred to the next generation. So inherited traits का नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा होगा they will be inherited to the next generation as the change in the DNA of germ cells takes place. समझ में आ रहा है? Acquired traits की हम बात करें they are also called somatic character because they develop in the somatic cells of the body. हमने जो piercing कराई तो somatic cells में हमने piercing कराई है, समझ में आ रहा है? टैटू हमने बनवाया स्किन पे, so that is over the somatic cells. तो ये जो acquired traits होते हैं they are also called somatic traits or somatic character as the changes occur in the somatic cell. हमको पता है somatic cells का inheritance नहीं होता है एक generation से दूसरे generation में. If we talk about the inherited traits, they are also called germinal characters. They are called germinal traits or germinal characters because these are the changes which occurring in the germ cells that are transferred to the next generation. तो acquired trait और inherited traits में बेटा आपको differences clear हो गए होंगे. They are non inherited, they are inherited to the next generation. They are also called somatic character, they are also called germinal character. जैसे अगर मैं बात करूं inherited traits का change in the eye color, hair color, ये सब क्या है? ये inherited traits हैं that are transferred from one generation to the next generation. Clear है? Now we will discuss about the species and speciation concept. So these are very important concept which we have to discuss it at the point of evolution, क्योंकि evolution में species and speciation concept का बहुत बड़ा role है. समझ में आ रहा है? So first of all we will define what is species. How you will define a species. So first of all we will see biological species concept, how we define the species. अगर मैं बात करूं species की, so we can define the species as it is a group of sexually interbreeding individuals which are separated from the members of other species by absence of genetic exchange. मैंने यहाँ पे बेटा species की जो definition लिखी है, क्या लिखा है उसमें? A species is a sexually interbreeding group of individuals separated from other species by the absence of genetic exchange. जो species है एक ऐसे organism का group है which can interbreed with each other and the members of one species they are separated from the members of other species by the absence of genetic exchange. For example, अगर मैं बात करूं human beings की, तो इस पूरी दुनिया में जो human beings हैं they are the members of same species, that is sapiens, because we know there can be sexual interbreeding between the humans of whole world. जो ह्यूमंस हैं पूरी दुनिया में ये है एक ही स्पेशीज के मेंबर, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है इट कैन अकर विद इन द ह्यूमंस ऑफ दिस
होल वर्ड। समझ में आ रहा है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो है एक important concept है that defines the person or the organism belong to the same species or not। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके, दे विल बी कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। जैसे जो डॉग्स है वो एक स्पीशीज के मेंबर हो गए, जो कैट्स हैं वो एक स्पीशीज के मेंबर हो गए। सो हाउ वी विल डिफाइन द स्पीशीज? अ स्पीशीज इज अ sexually interbreeding group of individuals separated from other species by the absence of genetic exchange। जैसे cats और dogs के बीच में there can not be interbreeding। समझ में आ रहा है? जो cats हैं and dogs हैं, there will not be any interbreeding between the cats and dogs because these are the members of two different species। तो टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में देयर विल नॉट बी जेनेटिक एक्सचेंज, देयर विल नॉट बी एक्सचेंज ऑफ द गैमीट्स। समझ में आ रहा है? कोई जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा। सो हाउ वी विल डिफाइन स्पीशीज? ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं उनको हम सेम स्पीशीज का मेंबर बोलेंगे। एंड द मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज बाय द एब्सेंस ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज। समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्पेशिएशन। What is speciation? सिंपल लैंग्वेज में बेटा हम स्पेशिएशन को डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर स्पीशीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड स्पेशिएशन। मतलब दी गई स्पीशीज से नई स्पीशीज का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पेशिएशन। आप देखते हो हमारे आसपास इतनी सारी स्पीशीज प्रेजेंट है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो जितनी भी नई नई स्पीशीज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो पुरानी जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज थी उनके मॉडिफिकेशन से, उनमें जो वेरिएशंस आए होंगे उससे फॉर्म होती हैं। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पेशिएशन। सो हाउ वी विल डिफाइन स्पेशिएशन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू स्पीशीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड स्पेशिएशन। वही बोला मैंने, किसी भी दी गई स्पीशीज से नई नई स्पीशीज का बनना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पेशिएशन। तो कैसे हम लिखेंगे डेफिनेशन? The process of formation of one or more new species from an existing species is called speciation। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि मैम ये नई नई स्पीशीज पुरानी स्पीशीज से बनती कैसे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशिएशन, कि जो स्पेशिएशन है वो कैसे होता है, कैसे नई नई स्पीशीज बन रही हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज। सो हेयर यू हैव टू कंसिडर अ सिचुएशन। तो जैसे जैसे मैं बेटा बोलती जा रही हूँ आपको वो सब अज्यूम करना है, दिमाग में सोच के चलना है कि मैम क्या बोल रही हैं। यू हैव टू रिफ्लेक्ट द सिचुएशन। आप सब लोग फैमिलियर हो बीटल्स से, इससे पहले वाले हमने लेक्चर में बीटल्स के बारे में डिस्कस किया है। तो अब आपको यहाँ पे क्या लेना है कि जो माउंटेन रेंज है वो बहुत लंबे एरिया में फैली हुई है और उन माउंटेन रेंज के ऊपर वो बुशेस हैं जिसके ऊपर बीटल्स फीड कर रही है। So the beetles, they are present larger in number because they are spreaded in a large area which has the mountain range that consists of bushes। मैंने क्या बोला आपको? एक लॉन्ग माउंटेन रेंज है जिसके ऊपर ग्रीन कलर की बुशेस हैं जिसमें रेड बीटल्स जो है वो फीड कर रही है, जो भी है बीटल्स फीड कर रही है। अब क्योंकि ये माउंटेन रेंज बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है, सो देयर विल बी मोर नंबर ऑफ बीटल्स। बीटल्स का भी नंबर क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा होगा। अब क्या हुआ, ये जो बीटल्स हैं जो इतनी लॉन्ग माउंटेन रेंज में फैली हुई हैं, कहीं ना कहीं क्या होगा? दे विल बी फीडिंग इन दी नियर बाई एरियाज। जो बीटल्स की पॉपुलेशन है अपने आसपास के एरिया में ही फीड कर रही होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वन माउंटेन रेंज के कॉर्नर से वो दूसरे माउंटेन रेंज पे जाके फीड करेगी। जो बीटल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने नियर बाई एरियाज में ही फीड कर रही होंगी। अब क्या होगा? when there will be these beetles they will be feeding in the nearby areas, so there will be small sub populations in the neighborhood। क्या होगा? जो माउंटेन रेंज है वो तो बहुत लॉन्ग माउंटेन रेंज है और अभी मैंने आपको बताया कि जो बीटल्स हैं वो अपने नियर बाई एरियाज में फीड कर रही होंगी। तो कहीं ना कहीं इस बीटल्स की पॉपुलेशन में छोटी छोटी सब पॉपुलेशन होंगी इन द नेबरहुड जो अपने ही एरिया में फीड कर रही होंगी। समझ में आ रहा है? तो ये आपको मानना है कि एक लॉन्ग माउंटेन रेंज है, उस पे ग्रीन कलर की बुशेस है जिसमें बीटल्स रह रही हैं। बीटल्स आर लार्जर इन नंबर क्योंकि माउंटेन रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है, अच्छे से उनको खाने को मिल रहा है। बट समहाउ these beetles will be feeding in the nearby area, जिसकी वजह से क्या होगा? there will be sub populations of the beetles in the neighborhood। अब now there has to be the reproduction in the beetles
बीटल्स में रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा, मेल बीटल हैज टू मेट विद द फीमेल बीटल। तो होगा क्या बेटा, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, सो द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन दी सब पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, बिकॉज वो अपनी फीडिंग हैबिट्स की वजह से सब पॉपुलेशंस में डिवाइड हो गई है, अपने लोकल नियर बाई एरिया में फीड कर रही है, तो जो रिप्रोडक्शन हो रहा होगा वो भी सब पॉपुलेशंस में होगा। समझ में आ रहा है? बट समहाउ आप ये भी सोच के चलो साइड में कि वन माउंटेन एंड से दूसरे माउंटेन एंड तक क्या हुआ, किसी बीटल का ट्रांसफर हो गया। सपोज करो क्रो ने एक बीटल को उठाया एक एंड से माउंटेन के और दूसरे एंड पे जाके ड्रॉप कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो बीटल ड्रॉप किया गया है वहां की लोकल पॉपुलेशन के साथ मेट कर रहा होगा, तो इस तरह से तो जीन का फ्लो हो रहा है। बट आपको ये मानना है कि अब ये जो माउंटेन रेंज थी वो सपोज करो रिवर से दो पार्ट में स्प्रेड हो गई, तो इधर साइड वाली जो बीटल्स थी किसी भी तरह से इस साइड वाली बीटल्स के साथ जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब तक बीटल जो है आपस में इंटरबीट कर रही थी वन माउंटेन एंड रेंज से दूसरे माउंटेन रेंज के एंड तक, तो जीन फ्लो हो रहा था। But you have to suppose somehow these beetles population they are separated by geographical isolation. Geographical isolation बेटा एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे इसने बीटल्स की पॉपुलेशन को सेपरेट कर दिया बाय जोग्राफिकल बैरियर, लाइक रिवर आ गई बीच में, जो माउंटेन रेंज थी वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, बीच में नदी आ गई। अब क्या हुआ, इधर की जो पॉपुलेशन है बीटल्स की वो दूसरी पॉपुलेशन के साथ इंटरबीट नहीं कर पा रही है, सो देयर विल बी नो जीन फ्लो। जीन फ्लो क्या हो गया, धीरे धीरे डिक्रीज हुआ और खत्म हो गया। डिक्रीज कैसे हुआ, पहले तो वो सब पॉपुलेशंस में इंटरब्रीड कर रहे हैं तो जीन फ्लो वैसे भी नहीं हो रहा, सब पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड कर रही है। फिर बंद कैसे हो गया, जब रिवर आ गई बीच में माउंटेन रेंज को सेपरेट हो गया, तो यहाँ की जो बीटल्स है इट इज नॉट इंटरब्रीडिंग विद द बीटल्स ऑफ द अदर साइड। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या हुआ बेटा, जीन फ्लो बंद हो गया। अब ये जो बीटल्स हैं अपने ही सब पॉपुलेशन में ब्रीड कर रही है, सो देयर विल बी द फिनोमिना लाइक इन जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन। जब ये रिप्रोड्यूस कर रही हैं तो इनमें वेरिएशंस आएंगे, तो देयर कैन बी वेरिएशन ड्यू टू चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। यहाँ की जो सब पॉपुलेशन है एक साइड की, उसमें वेरिएशन जो होंगे वो अलग तरह के डेवलप होंगे, दूसरी साइड की पॉपुलेशन में वेरिएशंस अलग तरह के डेवलप होंगे, क्योंकि अब इनमें जीन फ्लो तो हो नहीं रहा। सो देयर विल बी फिनोमिना लाइक जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे फिनोमिना ऑपरेट करेंगे। एंड आफ्टर टाइम व्हाट विल हैपन, these beetles they will form the new species। तो न्यू स्पेशीज का कैसे फॉर्मेशन हुआ, जोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, जीन फ्लो बंद हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन ने अपना रोल प्ले किया, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशिएशन। तो यहाँ पे मैंने बेटा वही लिखा है, स्पेशिएशन अकर्स व्हेन द जीन पूल का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सबकी जीन्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं जीन पूल। सो स्पेशिएशन अकर्स व्हेन द जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन इज समहाउ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सिस्टर पॉपुलेशन ऑफ पेरेंट स्पेशीज एंड जीन फ्लो नो लॉन्गर अकर। तो बीटल की जो पेरेंट स्पेशीज थी वो दो सब पॉपुलेशन में ब्रेक हो गई, ठीक है। अब इन दोनों सब पॉपुलेशन के बीच में कोई जीन फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इधर की बीटल इधर के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, दे आर नॉट इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर, वो अपने ही सब पॉपुलेशन में ब्रीड कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस वाली सब पॉपुलेशन का जो जीन पूल था, कलेक्शन ऑफ जीन्स, वो दूसरी पॉपुलेशन से एकदम आइसोलेटेड हो गया है, एंड ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ दिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज। तो बेटा आपको इसको समझना होगा, व्हाट आई एम सेइंग, what is the concept of speciation, how speciation occurs, it occurs when the gene pool of a population is somehow reproductively isolated। reproductively isolated मतलब reproductive isolation एक ऐसा फिनोमेना है जो दो populations को आपस में इंटरब्रीड करने से रोकता है। तो reproductive isolation is a phenomena that prevents the interbreeding of two different populations। समझ में आ रहा है? तो एक पॉपुलेशन का जो जीन पूल है वो दूसरे पॉपुलेशन के जीन पूल से एकदम आइसोलेट हो गया है, that will lead to the formation of new species। So it occurs when the gene pool of a population is somehow reproductively isolated from other sister population of parent species and gene flow no longer occur। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे जो बीटल्स की पॉपुलेशन थी वो सब पॉपुलेशन में सेपरेट हो गई। नाउ देयर इज नो जीन फ्लो बिटवीन दीज टू सब पॉपुलेशन, और जितनी भी सब पॉपुलेशन बनी है उनके बीच में कोई जीन फ्लो नहीं है, दे आर रिप्रोड्यूसिंग विद इन देयर ओन सब पॉपुलेशन, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज। क्योंकि जब वो रिप्रोडक्शन हो रहा होगा उनके बीच में
So there will be many factors, changes होंगे, mutation होगा, interbreeding होगी, जिसकी वजह से variations आएंगे, and that will lead to the formation of new species. समझ में आ रहा है? So that is the concept of speciation. Now we have to see what are the factors which are responsible for speciation. So one of the factor is geographical isolation. मैंने आपको बताया जब माउंटेन रेंज स्प्लिट हो गई और बीच में रिवर अपीयर होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जीन फ्लो नहीं हो पाया, एंड geographical isolation plays one of the important role in the speciation. But साथ साथ आपको ये याद भी रखना है बेटा, अगर asexually reproducing organism है, asexually reproducing organ हमने पढ़ा है, asexual reproduction क्या होता है, जिसमें सिंगल पेरेंट इट गिव्स राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म. क्या जोग्राफिकल आइसोलेशन रोल प्ले करेगा इन केस ऑफ asexually reproducing organism? व्हाट इज द आंसर, यस और नो? द आंसर शुड बी नो. अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने साइड वाले ऑर्गेनिज्म से कोई जेनेटिक एक्सचेंज नहीं कर रहा है, वो asexually रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको कहीं भी रख दो, जोग्राफिकली कहीं भी आइसोलेट कर दो, ये जो है जोग्राफिकल आइसोलेशन इसके स्पेशिएशन में कोई हेल्प नहीं करेगा. So geographical isolation plays an important role only in the speciation of sexually reproducing organisms, not asexually reproducing organisms. तो ये आपको याद रखना है, geographical isolation plays an important role in the speciation of sexually reproducing organisms, but not for asexually reproducing population. Clear है? The other factors are genetic drift. क्योंकि जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है, एंड दैट विल आल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. हमने देखा था ना, रेड कलर की बीटल्स जो है वो ब्लू कलर की बीटल्स में चेंज हो रही है, सो इट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. एंड थर्ड फैक्टर इज नेचुरल सिलेक्शन. जैसे सपोज करो जो क्रो है वो एक तरफ जो बीटल्स हैं उनके ऊपर ईगल जो है, वो क्रो जो है बीटल्स के ऊपर फीड कर रहा है. अब इस क्रो को अगर ईगल ने ही फीड कर लिया, तो जो ग्रीन कलर की बीटल्स इवॉल्व हुई थी उनका तो नेचुरल सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा. सो दैट इज नेचुरल सिलेक्शन भी रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. जबकि दूसरा ग्रुप जहाँ पे क्रो को ईगल्स के द्वारा फीड नहीं किया जा रहा, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कलर बीटल्स. सो जेनेटिक ड्रिफ्ट, natural selection, interbreeding, geographical isolation, these are the factors which are responsible for the formation of new species. तो ये भी याद रखना है, asexually reproducing organism के केस में geographical isolation does not play any role. क्लियर है बेटा आपको स्पेशीज का कॉन्सेप्ट, स्पेशिएशन का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज जीन पूल, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द स्पेशिएशन.